Hello all my dear students, good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari. As you know that you are a science teacher, and on the behalf of Subrat Singh Children Academy, I am welcoming you to all. And as you know that at present your revision of chapter number 2 microorganisms strand of 4 is running, and in that we have discussed about microorganisms, categories of the microorganisms, useful activities of the microorganisms, as well as harmful activities of the microorganism. So this is the last video of this chapter, and in this video we will complete nitrogen cycle, as well as we will also discuss about the keywords of the chapter and important questions those are given in your NCERT. So without wasting the time, I am starting with topic number 1, that is known as what? Nitrogen cycle. So before explaining the nitrogen cycle, let's quickly discuss about some terms. The first one is here, nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो पहले आपको बेटा नाइट्रोजन साइकिल बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. सो दिस इज द प्रोसेस बाय which atmospheric, it is the process by which as atmospheric nitrogen is fixed into the soil. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेयर में था, आप सभी को पता है 78%, दैट इज फिक्स्ड इनटू द soil. So how these atmospheric nitrogen got fixed into the soil, that will be discussed in nitrogen cycle. So what this nitrogen fixation? This is the process by which atmospheric nitrogen is fixed into the soil. नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है. नाइट्रोजन साइकिल, सो दिस इज द व्हाट? सर्कुलेशन ऑफ, सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ nitrogen from atmosphere, circulation of nitrogen from atmosphere into the soil, and again from the soil, and again from the soil into the atmosphere. ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं? दिस इज ए व्हाट? साइक्लिक प्रोसेस. ये कैसा प्रोसेस है? दिस इज ए टाइप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस. सो व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? Nitrogen cycle is a cyclic process in which atmospheric nitrogen got fixed into the soil, and then after it again from the soil reaches to the atmosphere. So now we will discuss how atmospheric nitrogen got fixed into the soil and how it again from the soil reaches into the atmosphere. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहुंचा कैसे सॉइल में और फिर सॉइल से वो एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचा. सो ऑल दीज विल बी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल बिकॉज यू आर स्टडिंग इन क्लास 8th. So we will not discuss all those steps, those we have to discuss in higher classes. जैसे हम आपको यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है. ये 3 मेजर स्टेप्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल में होते हैं. बिकॉज these are not part of your syllabus, that's why we are not discussing with that. But nitrification, denitrification, ammonification, all these will be discussed in higher classes. According to NCERT, we will discuss all those concepts. लेकिन हाँ, उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आप वो पूरी तरह से समझ पाओगे. तो इतना तो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है. प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गॉट फिक्स्ड इनटू द सॉइल. And what is nitrogen cycle? Nitrogen cycle means the circulation of the nitrogen from the atmosphere into the soil and from soil into the atmosphere again. Now we will discuss about the method of nitrogen fixation. Then students, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है बेटा? Method of nitrogen fixation. Method of nitrogen fixation.
तो यहाँ से हमको दो मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट जो कि होता है बेटा, यहाँ से देखिए आप, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अभी आपको मैं बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, लाइटनिंग जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। आपने देखा होगा बरसात वगैरह में लाइटनिंग यानी चमक जो होती है, उसकी वजह से भी नाइट्रोजन सीधे कहाँ पहुँच जाता है, सॉइल में। सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड, हियर बैक्टीरिया एंड blue green algae, bacteria and blue green algae fixed the atmospheric nitrogen, यानी डायरेक्ट मेथड में सीधा लाइटनिंग हुई, पहुंच गया वो सॉइल में। दूसरा जो इनडायरेक्ट मेथड होता है बेटा, कुछ इस तरह के आपके बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, ये सभी हेल्प करते हैं। ठीक है। दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसमें आपका नॉस्टॉक है, एनाबिना है, या हम कह लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो हेल्प करते हैं कहाँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। ये सभी बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं। ठीक है। उन लेग्यूमिनस क्रॉप के रूट नोड्यूल्स में मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा मटर, ठीक है, अरहर, इन सभी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनमें ये बैक्टीरिया मिलते हैं और क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो कैसे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होता है, अब हम आपको वो स्टेप्स बताएंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दिस वन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के पास दो रास्ते हैं। द वे नंबर वन, डायरेक्ट मेथड, जिसे आप कहते हो क्या, लाइटनिंग हो गई, लाइटनिंग की वजह से ये पहुंच गया कहाँ, सॉइल में। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं, दे टर्न्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी बेटा अभी हमने आपको कितने, केवल दो स्टेप बताए। स्टेप नंबर वन, दिस वाज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हाउ मेनी परसेंट, 78% in the atmosphere. Now this nitrogen has two ways. The way number one, by means of lightning it will reach into the soil, and the way number two, nitrogen fixing bacteria and blue green algae will fix the atmospheric nitrogen and they will turn the atmospheric nitrogen into the nitrogenous compound. ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड में क्या होते हैं, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, तो इन सभी में वो चेंज हो जाएगा कौन, नाइट्रोजन। ठीक है। तो फिर अब ये जो टर्न हो गया नाइट्रोजनस कंपाउंड में, नाउ इट विल रीच इनटू द सॉइल। अगले स्टेप में क्या होगा, रीच टू द सॉइल। कौन पहुंचा, नाइट्रोजनस कंपाउंड कहाँ पहुंच गए, सॉइल में पहुंच गए। तो एक तो तरीका ये था, सीधा पहुंचा दिया गया। दूसरा तरीका इस तरह से सर्कुलेट करते हुए है, तो हम इसको एक स्टेप नंबर वन में लिख सकते हैं। अब अगर ये सॉइल में पहुंच गया, इट विल यूटिलाइजेज बाय द प्लांट्स। अगले स्टेप में क्या होगा, ये सॉइल में पहुंचा तो ये क्या हो जाएगा, अपटेक बाय द प्लांट, अपटेक बाय द प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स ने इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड को ले लिया। अब प्लांट्स को कौन खाएगा, प्लांट्स आर ईटन बाय प्लांट को कौन खाएगा बेटा, एनिमल्स खाएंगे। कौन से, जो हर्बीवोर होंगे, जैसे काऊ, डियर, बुफेलोज, गोट,
तो ये सभी खाएंगे ना प्लांट को। तो प्लांट में कौन पहुंचा था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में पहुंचा, सॉइल से प्लांट्स में पहुंचा, एंड फ्रॉम प्लांट्स इट नाउ रीचेस टू द एनिमल्स। और आपको पता है कि अगले स्टेप में क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल की डेथ होगी। अगले स्टेप में नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम, अब बेटा ये जो एनिमल था आपको पता है कि ये अपना खाना अगर इसने खाया है तो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेगा, जैसे यूरिन। तो यूरिन जो हम लोगों की होती है, एनिमल्स की होती है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। सो नाउ दीज एनिमल्स विल रिलीज द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। ठीक है, अब जो प्लांट्स को खाया एनिमल्स ने रिलीज किया एक्सक्रीटरी वेस्ट जिसमें था नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन के साथ साथ उनकी डेथ हुई। डेथ के बाद भी वो जो नाइट्रोजन उन्होंने लिया था प्लांट से वो वापस लौटा दिया किसको, सॉइल को। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन got fixed directly into the soil by the lightning. Second, it is just fixed by the bacteria, blue-green alga, and they turns the nitrogen into nitrogenous compound, and then it reaches into the soil, and from soil it will taken by the plants. Plants were eaten by the animals, and animals will release the excretory products as well as they will die. And after death of the plants, and we can say that animals, now again nitrogen reaches to the soil. अब आपने इतना प्रोसेस देख लिया, अब लास्ट में क्या होगा बेटा, ये जो कहाँ था, सॉइल में पहुँचे थे कौन, नाइट्रोजनस कंपाउंड, इनका क्या होगा आगे देखिए लास्ट में, यहाँ से ये होगा बैक्टीरिया टर्न्स द नाइट्रोजनस कंपाउंड, bacteria turns the nitrogenous compound into gaseous nitrogen, and this nitrogen will again reach into the atmosphere. So this is the detailed outline of what, nitrogen cycle. तो ये आपको डिटेल आउटलाइन बताई गई किसका बेटा, नाइट्रोजन साइकिल का। बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से हमने आपको बताया है, और ये आपके एर्थ स्टैंडर्ड के लिए मोर दैन सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको फिर कुछ स्टेप्स बताने होते। ठीक है, वो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, ये सारे स्टेप्स वहाँ से आपको बताने पड़ते। लेकिन चूंकि ये आप एर्थ स्टैंडर्ड के हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल. Now we will discuss the some keywords. Before discussing the some keywords, let's quickly recap that why nitrogen is necessary for the plants. So nitrogen is necessary for the plants for their growth as well as for their protein synthesis. So these are the important component of protein, these are the important component of nucleic acid. ठीक है, तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ बेटा प्रोटीन के। ठीक है, तो बिना इनके प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ऑब्वियसली एक नाइट्रोजन क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट के ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए। दैट्स वाई दीज आर नेसेसरी एंड प्लांट्स कैन नॉट टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। दैट्स वाई देयर इज अ नीड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि नाइट्रोजन 78% है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो डायरेक्टली प्लांट के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि वो बेटा फ्री फॉर्म में है। कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। तो उस फ्री फॉर्म जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं। ठीक है, और फिर जब वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होकर सॉइल में पहुंच जाता है, फिर उसको प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन सी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राइजोबियम है रूट नोड्यूल्स में मिलती है, ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ एजेटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, क्लॉस्ट्रीडियम है, तो ये सभी बैक्टीरिया हैं और हेल्प करते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में। अब हम यहाँ से बेटा फटाफट कुछ कीवर्ड्स देखते हैं और फिर आपके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ओके देयर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द
वेरियस कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स में बेटा आपको 4 तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम ही दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज एल्गी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एल्गी क्या है? दे आर मोस्टली एक्वाटिक, फाउंड इन मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। ठीक है, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एज वेल एज दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर ग्रीन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो गिवन फंजाई। फंजाई आर द सैप्रोट्रॉफ्स, they just feeds on dead and decaying organic matter. Mode of nutrition is heterotrophic. They are mostly multicellular except yeast and bread mold. तो yeast और bread mold को छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया हमने आपको बताया सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया क्या होता है? सबसे प्रिमिटिव टाइप का यूनिसेलुलर है, सिंपलेस्ट है और ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर होता है। इसी तरह से वायरसेस दिए गए हैं। वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आई हैव जस्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। ओके, दे नीड होस्ट सेल फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो ये चारों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इन द कैटेगरीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर। एंड नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फ्यू कीवर्ड्स। तो यहाँ से पहला देखते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दीज आर द इफेक्टिव प्रोटीन, इफेक्टिव प्रोटीन formed by effective protein formed by the immune system, formed by the immune system in response to kill a particular एंटीजन, यानी एंटीजन जो कि एक बाहर से कोई भी फॉरेन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था वो आपकी बॉडी में पहुंचा, तो आपकी इम्यून सिस्टम ने उसको मारने के लिए जो हम क्या किया, मटेरियल तैयार किया, जो कि प्रोटीन तैयार किया, दैट वाज एंटीबॉडीज। यानी जो एंटीजन को मार के ख़त्म कर दे, दैट इज नोन एज व्हाट? एंटीबॉडीज। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पे है कैरियर। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज वेक्टर्स, इनको हम वेक्टर्स भी कहते हैं। एंड कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी पैथोजन क्या होते हैं, इनको हम बैक्टर भी कहते हैं। और ये इनका काम क्या होता है, जो डिजीज़ को कराने वाले बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ हैं, फंगस हैं, उनको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाना। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज, फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाइज, आई हैव ऑलरेडी मेंशन। ठीक है, लिख सकते हैं एग्जांपल है मॉस्किटोज, ठीक है, एज वेल एज हाउस फ्लाई। ठीक है, ये सभी क्या है? कैरियर है। लेट्स कंसीडर थर्ड, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, ओके बेटा। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है आप सभी को पता है, ये भी द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ऐसी डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है थ्रो, कैसे? थ्रो एयर, वाटर, बैक्टर, ETC। कंटामिनेटेड फूड, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, तो उनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। लेट्स कंसीडर द नेक्स्ट कीवर्ड। अगला है बेटा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्या है? लैक्टोबैसिलस। व्हाट इज लैक्टोबैसिलस? दिस इज रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया फाउंड इन मिल्क and help in the production of
लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, ये एक रॉड से बैक्टीरिया है बेटा। ठीक है, और ये मिल्क में मिलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट कराएं या उनको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें। ठीक है, अगला कीवर्ड क्या है बेटा आपका, पैथोजेन। पैथोजेन, तो व्हाट इज पैथोजेन, डिजीज कॉजिंग microorganisms, disease causing microorganisms are known as पैथोजेन। यानी जिनसे डिजीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेन कहते हैं। एक और दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप सभी को पता है द organism which cannot be seen, the organism which cannot be seen with our naked eyes। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख पाते उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स कंसीडर फ्यू मोर। इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड preservation. So what is food preservation? This is the process of treating, this is the process of treating or handling the food with the aim to prevent or slows down its spoilage। यानी कहने का मतलब क्या है, फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा मेथड है फूड के ट्रीटमेंट का जिसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम फूड को खराब होने से बचाएं या फूड स्टफ्स को खराब होने से बचाएं by using the sugar, by using the vinegar, by using we can say that by boiling, by sun drying। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ फूड प्रिजर्वेशन में। ठीक है, सन ड्राइंग है। ठीक है, इसके साथ साथ आप शुगर का यूज़ कर रहे थे, अल्कोहल का यूज़ कर रहे थे, लैक्टिक एसिड यानी हम कह सकते हैं विनेगर का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप और बहुत से तरीके थे जिसके द्वारा फूड का प्रिजर्वेशन कर रहे थे, बॉयलिंग कर रहे थे आप। ठीक है, पास्चराइजेशन कर रहे थे। तो अगला स्टेप हम वही देखेंगे, व्हाट इज पास्चराइजेशन। सो हमारा अगला क्या है बेटा, पास्चराइजेशन। दिस इज अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन involve heating of food stuff यानी खाना या खाने वाला प्रोडक्ट। हीटिंग ऑफ फूड स्टफ एट हाई टेम्परेचर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 65 एट हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट। तो पास्चराइजेशन में हम सबसे पहले इसको किसी भी फूड स्टफ्स को हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लेते हैं। कूलिंग इट रैपिडली लिख सकते हैं, कूलिंग इट रैपिडली कॉल्ड पास्चराइजेशन। ठीक है बेटा, अब यहाँ से एक और देखते हैं, वैक्सीन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज द वीकेंड or we can say that killed form of microbes introduced in our body to form antibody।
यानी वीकेंड फॉर्म या किल्ड फॉर्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भेजा जाता है, फिर आपके इम्यून सिस्टम ने क्या बना लेते हैं, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बेटा लास्ट में एक और देख लेते हैं, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आप सभी रिवाइज कर लें। फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ sugar into alcohol with the help of microorganisms, in bracket you can write yeast। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, स्पेशली ईस्ट के, उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इसके अलावा कीवर्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया गया, मैंने आज ही बताया, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इनटू द सॉइल इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा इसी कीवर्ड में दिया गया नाइट्रोजन साइकिल। सो सर्कुलेशन ऑफ द नाइट्रोजन from the atmosphere to the soil and from soil again into the atmosphere is known as what, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस ऑल आर ऑल्सो गिवन। तो इन सभी को मैं आपको पहले भी कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बता चुका हूँ बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नाइट्रोजन साइकिल एज वेल एज की वर्ड्स। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू कैन लीव इन योर कॉमेंट बॉक्स। So that is all about for today, and as you know that if you able to understand this video you can like the video also. So that is all about for today. Thanks for watching the video. Have a nice day. Keep smiling. Jai Hind.